Hello everyone. Today we are going to start about individual cell method. Now if you remember, individual cell method is an application of our potentiometer. Now what is potentiometer? Potentiometer is a device which is used to calculate my unknown EMF or which is used to calculate my internal resistance of a cell. Today in individual cell method, what we are going to learn? We are going to learn how to calculate the unknown resistance or unknown EMF of a cell. Now the first thing which we are going to learn is how to draw the circuit diagram of our individual cell method. So let us start drawing the circuit diagram. The first thing which I am going to take is nothing but my battery. सबसे पहले मैंने एक बैटरी ले लिया, that is plus minus. इस बैटरी को मैं बोलूंगा that is capital E because EMF of my battery is capital E. Now to this I am going to attach a wire. एक वायर मैंने अटैच किया, नीचे और एक वायर मैंने अटैच किया. This wire is further connected to my terminal A. एक terminal A मैंने ले लिया, उसको मैंने connect कर दिया अपना wire. Further after terminal A, again I am going to take a wire. I am going to connect this wire to my terminal B. Means a constant length is maintained between my terminal A and terminal B. Wire वही वाला जा रहा है, लेकिन terminal A और B के बीच में हम लोग क्या करेंगे, अपना पूरा का पूरा रीडिंग लेंगे. तो एक constant length हम लोग ने maintain किया है between my terminal A and my terminal B. After terminal B, again I am going to stretch this wire. I am going to take it up. I am going to attach it to a key. एक key से हम लोगों ने इसको attach कर दिया. Remember, key is to on and off my circuit. इसके बाद इसको attach किया to a resistor. Now this is not a normal resistor. This is our rheostat. तो हम लोगों ने इसको एक rheostat से connect कर दिया. Remember, हम लोग rheostat से क्या करेंगे? We are able to apply our variable resistance. हम लोग variable resistance apply करेंगे with the help of our rheostat, which is further connected to an ammeter. Ammeter is used to take our current reading कि मेरा पूरा का पूरा circuit से कितना current flow हो रहा है. Ammeter को हमने नाम दे दिया that is A1 with plus and minus, which is further connected to the negative terminal of the battery. So here we have completed a circuit. एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सर्किट कंप्लीट करके वी आर गोइंग टू अटैच अ स्केल. ए और बी के बीच में हम लोग ने एक स्केल अटैच कर दिया. एक स्केल क्यों अटैच किया? बिकॉज इफ यू रिमेंबर, ए और बी के बीच में हम लोग रीडिंग लेंगे तो वहां पे हम लोग ने स्केल अटैच कर दिया टू मेजर आवर लेंथ, कि कौन से लेंथ में हम लोग को अपना बैलेंसिंग कंडीशन मिला. दिस सर्किट आई एम गोइंग टू नेम इट एज आवर प्राइमरी सर्किट. तो ये ऊपर वाले सर्किट को मैंने नाम दे दिया मेरा प्राइमरी सर्किट. आफ्टर ड्रॉइंग अवर प्राइमरी सर्किट आई एम गोइंग टू ड्रॉ माय सेकेंडरी सर्किट. सबसे पहले क्या किया, मैंने एक वायर खींच के ले लिया, उसको दे दिया एक टर्मिनल सी. उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक अ टर्मिनल डी, a wire attached. This is further connected to a galvanometer. Remember, किससे connected है? Galvanometer. Galvanometer is further connected to a arrow. Now, what is this arrow? This arrow is nothing but our jockey. Now, what is jockey? Jockey is a device which is used to measure our current. हम लोग का current sensitive है, हम लोग का जो current है वायर में से उसको पहुंचाएगा हम लोग के galvanometer को. ऐसे डिवाइस को हम लोग बोलते हैं jockey. Jockey is nothing but a pen-like structure. जब हम लोग इसको वायर के ऊपर मूव करेंगे, ये क्या करेगा, वायर में से करंट कलेक्ट करेगा और इसी करंट को पहुंचाएगा टू आवर गैल्वेनोमीटर एंड आवर गैल्वेनोमीटर इज गोइंग टू शो आवर रीडिंग. हम लोग गैल्वेनोमीटर से रीडिंग दिखाएगा. तो इस सर्किट को हमने बोल दिया अपना सेकेंडरी सर्किट. सो रिमेंबर, हम लोग ने क्या किया, पहले बनाया अपना प्राइमरी सर्किट, फिर बनाया हम लोग का सेकेंडरी सर्किट. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर मैंने एक सेल ले लिया दैट इज E1, नीचे मैंने सेल ले लिया दैट इज E2 विद प्लस एंड माइनस. अभी हम लोग का मेन टॉपिक का नाम क्या है, इंडिविजुअल सेल मेथड. इंडिविजुअल सेल का मतलब मैं पहले E1 कनेक्ट करूंगा, फिर E1 को डिस्कनेक्ट करके मैं क्या कनेक्ट करूंगा, E2 कनेक्ट करूंगा. मतलब साइमल्टेनियसली कनेक्ट नहीं होगा, एक एक करके कनेक्ट होगा. दैट इज द रीजन हम लोग के टॉपिक का नाम आया इंडिविजुअल सेल मेथड. नाउ रिमेंबर, ये पूरे के पूरे हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द अननोन EMF ऑफ अ सेल. इसका मतलब क्या, मुझे या तो E1 का वैल्यू मालूम है या तो मुझे E2 का वैल्यू मालूम है. मतलब क्या, दोनों में से सिर्फ एक ही का वैल्यू मालूम है. बाय कंपैरिजन मेथड हम लोग क्या करेंगे, अगर E2 का वैल्यू मालूम है तो किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, E1 का वैल्यू. अगर E1 का वैल्यू मालूम है तो किसका फाइंड करेंगे, E2 का वैल्यू. अभी कैसे करेंगे, लेट अस मूव अहेड टू आवर प्रोसीजर. अभी प्रोसीजर में मूव करेंगे. सबसे पहले मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, E1. जैसे मैंने E1 कनेक्ट कर दिया, अभी ये E1 और E2 कैसे कनेक्ट होता है, हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ
switch or with the help of a key. मतलब switch इस तरफ किया तो E1 कनेक्ट हो जाएगा, उस तरफ किया तो E2 कनेक्ट हो जाएगा। हमने क्या किया, अपना सिंप्लिसिटी के लिए क्या बोला है, सबसे पहले हमने अटैच कर दिया अपना E1। जैसे हम लोगों ने E1 अटैच किया, हम लोग क्या करेंगे, की ऑन करेंगे। की को ऑन करेंगे तो क्या होगा, प्राइमरी सर्किट से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। सो एज यू कैन सी करंट I is flowing through our primary circuit. If current I is flowing through our primary circuit, what we see, हम लोग क्या करेंगे, if you can see that jockey, we start moving our jockey between our terminal A and B. अभी jockey जैसे ही हम लोग between A और B के बीच में मूव करना स्टार्ट करेंगे, what we are going to see is हम लोग का galvanometer रीडिंग देना स्टार्ट करेगा। अभी हम लोग कौन से पॉइंट पे आके रुकेंगे, we are going to stop at a point where our galvanometer is showing a zero deflection or null deflection. null deflection का मतलब क्या, जब मेरा galvanometer का नीडल एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा तो मैं बोलूंगा मेरे को मिल गया नल डिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने अपना जॉकी मूव किया, एक सर्टेन लेंथ तक पहुंच गया। फॉर एग्जांपल मैं लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, अगर 10 सेंटीमीटर तक मेरा जॉकी पहुंचा और तभी मेरा गैल्वेनोमीटर का नीडल सेंटर पे आ गया, तो वो 10 सेंटीमीटर में मेरे को क्या मिल गया, मेरा बैलेंसिंग लेंथ। सो हियर आई एम गेटिंग माय बैलेंसिंग लेंथ एट जे। तो जॉकी जे ने मेरे को बैलेंसिंग लेंथ दे दिया जे पे। अभी ये हो गया मेरा पहला E1 का कैलकुलेशन। एक बार E1 का हो गया तो हमने क्या लिख दिया, उसका कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। तो E1 का हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं। E1 का इक्वेशन लिखेंगे, E1 इज इक्वल टू x times L1 where x is nothing but our constant। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, E1 is directly proportional to L1। मतलब EMF किसको प्रोपोर्शनल है, लेंथ को प्रोपोर्शनल है। इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इतना इसका कंप्लीट हो गया। इसके बाद E1 निकाल देते हैं हम लोग। E1 निकाल दिया, अभी क्या कनेक्ट करेंगे, E2 कनेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि क्या है, इंडिविजुअल सेल मेथड, इंडिविजुअली हम लोग कनेक्ट करेंगे। जैसे E2 हमने कनेक्ट किया, अभी वापस क्या करेंगे, जॉकी को मूव करना स्टार्ट करेंगे। अभी E2 अलग हम लोग का सेल है तो अलग हम लोग को बैलेंसिंग कंडीशन देगा। आई एम गोइंग टू से इसका बैलेंसिंग कंडीशन मेरे को मिल गया है J डैश पे। मतलब दोनों का लेंथ सेम नहीं मिलेगा, बिकॉज E1 और E2 दोनों क्या है, अलग अलग है। तो इसका मेरे को मिल गया J डैश पे। अगर इसका इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, E2 इज इक्वल टू x टाइम्स L2। इसको नाम दे दिया, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ हाउ टू प्रोसीड विद आवर डेरिवेशन, हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मैं दोनों को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। इफ आई एम गोइंग टू डिवाइड इट, मेरे को क्या मिलेगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। मतलब क्या, अगर मेरे को E1 का वैल्यू पता है, डायरेक्टली मेरे को किसका वैल्यू मिल जाएगा, L1 का वैल्यू मिल जाएगा। E2 का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन L2 का वैल्यू तो हम लोग को मिल जाएगा बाय परफॉर्मिंग अवर एक्सपेरिमेंट। अभी मेरे को किसका वैल्यू मिल गया, E1 का तो पता था, L1 का हमने फाइंड किया, L2 का हमने फाइंड किया। सो बाय इंटरचेंजिंग आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ माय E2. This is nothing but our individual cell method. So this becomes the final answer of our individual cell method, that is E1 upon E2 is equal to L1 upon L2. I hope you have enjoyed this session. Thank you.